Hi students, today for economics chapter we will go for poverty as a challenge. So poverty as a challenge we have to see from India. हम भारत में चुनौती, निर्धनता की चुनौती के बारे में पढ़ेंगे. So here we know India is known as country of poor country, poverty ridden country. So from after independence we had a great challenge of facing the problem of poverty. Poverty, where poverty, who is poor, these all are a question. So today we will go with that all questions, and you please be carefully study this. Next is poverty can be found in two areas. One is rural area and one is urban area. So in rural area the villages are there. So in villages the small farmers, the marginal farmers, the agriculture laborers, the landless laborers, the tribals, and in this way those who lives in village, that category comes in this. Urban area, in urban area those who are poor, they are some children are there who were working in dhabas, canteens, and the laborers, casual laborers are there, and other workers working in construction field, and this way. So those who lives in urban area and those who lives in rural area, their problem is, three problems are there. One is they have to feed themselves and their family, and where they should get a shelter, they need a shelter. Next is what they have to wear clothes. So these three problems they face. Now we will go for case study. We will see from rural areas some families, one family from rural area and one family from urban area. So this one case study I will tell you. हमारे गांव के एक फैमिली के बारे में मैं आपको बताऊंगी. So here ये निहाल सिंह family. Nihal Singh is living in rural area. So he is a landless laborer. He works under a landlord. He go for work in landlord's farm. There he is a casual laborer because he does not get do throughout the year work. Sometimes when he calls he gets works. So as he is not a permanent worker, he gets sometimes only works. He has a family, I told you, his wife and 7 people are there in his family. That is his 4 children, his parents, and they both. So but his father died of TB. He could not give proper treatment for his father, and in this way lack of treatment he died on illness. Next is his mother. Mother is also ill, heart patient, but she works with his wife. They go for cutting fodder and collecting firewoods, etc. in the village. The children are there, they are not going school. So this Nihal Singh, whatever he collects, he gets from the farm, this work, that wage is very less. 50 rupees sometimes he gets, and with that he gets the food items, like the landlord gives him rice or dal or whatever he produces. In the money, as a form of money, he does not get. So this is one of the problem, that he could not feed the family
he could only feed 2 times to his family. So many of the items, if he want to buy, his wishes only, he could not complete that. And in this family, oil, soap or clean water, these all are inaccessible. This all they could not provide to their children this all. So ऐसे फैमिली को हम गरीबी में गिनते हैं। ये हमारे एक गांव की स्थिति है जो मैंने आपको बताया। एक निहाल सिंह है, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ और पिता हैं, लेकिन पिता की मृत्यु हो जाती है टीबी से, और उसकी माँ हार्ट पेशेंट है, जो उसकी बीबी के साथ में कुछ लकड़ियाँ वगैरह चुनकर लाती है और वो घर में अपना किचन का काम करते हैं। इस तरह से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। निहाल सिंह को जो पैसा मिलता है उससे वो कुछ आवश्यक चीज़ें ही खरीद पाता है। निहाल सिंह को पैसे के रूप में 50 रुपये ही दिए जाते हैं लैंडलॉर्ड से, उसके बदले में उसको वहाँ से दाल चावल जैसे चीज़ें देकर दिया जाता है। अगर हम देखें तो उसकी बहुत ज़रूरी साबुन या ऑयल या दूसरी चीज़ें उसे खरीदना है तो इससे वो वंचित रह जाता है। ये है एक गांव की कहानी। अब मैं एक अर्बन एरिया में रहने वाले फैमिली के बारे में बोलूँगी। द फैमिली फ्रॉम द अर्बन एरिया। हियर ए फैमिली फ्रॉम सहारनपुर इन यूपी। So this person, he is working in a flour mill. एक मिल में काम करने वाला वर्कर है। Here also, whenever the current is there or whenever the rain current is not there or rain is there, so sometimes the mill does not work. So he is also a casual labor. जब वो बुलाते हैं तब वो जाता है, तो उसे नियर अबाउट 1500 रुपीज़ मिलता है। उसके घर में भी 5 लोग हैं, उसके बच्चे हैं, उसके 3 बच्चे और वो मदर फादर शहरों में रहते हैं। इसके बाद में उसके गांव में उसकी माता पिता है, तो उनको भी उसे पैसा भेजना पड़ता है। तो इसके लिए वो उसकी बीबी को आसपास के घरों में मेड सर्वेंट के रूप में भेजता है, जिससे उसे लगभग अंडमान की तरह नहीं मिलता है, उनको वहाँ पर बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, 300 रुपये केवल मिलता है। तो इस तरह से जो उनको पैसे मिलता है वो लेके घर में आते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई उनसे नहीं करवाई जाती, क्योंकि किराए के घर में रहना और बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वे उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है। तो बच्चे जब माता पिता दोनों काम पर निकल जाते हैं तो बच्चों को देखने का काम उस 12 वर्षीय बच्चे के हाथ में होता है, जो अपने छोटे बच्चों को देखता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक अर्बन एरिया में रहने वाला फैमिली की ये स्थिति है, जहाँ पर उसे चप्पल खरीदना है या वहाँ पर उसे कपड़े खरीदना है तो साल में एक बार हो पाता है, या जब कपड़े फट जाते हैं तभी वो ले पाते हैं। सो द कंडीशन इज वेरी पुअर हियर। दिस टू circumstances we have seen, situations we have seen. Let us go for the dimension. इनके आयामों के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर क्या क्या स्थितियाँ हमें देखने को मिली। हमने देखा कि सबसे पहले तो यहाँ पर पॉवर्टी है। It refers to food, shelter and clothing. This is one of the major issue. Second issue is they are unable to provide proper treatment. Next is the malnutrition. Naturally, when there is food problem, then it will create the problem of malnutrition. अगला प्रॉब्लम है illiteracy.
इलिटरेसी एंड पॉवर्टी इज वेरी क्लोजली रिलेटेड। आप समझ गए होंगे कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनको किस तरह से काम मिलेगा, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनका काम का जो इनकम होगा वो भी बहुत कम होगा। सो इलिटरेसी लीड टू पॉवर्टी। इन दिस वे इट जनरेट्स child labor. Next is unemployment. Unemployment with underemployment. अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है मैं बताऊंगी आपको इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट होगा हेल्पलेसनेस। सो लेट अस डिस्कस दिस। यू नो दैट in the rural area or in urban area, both areas we have this problem of food, shelter and clothing, unable to provide proper treatment। जैसे मैंने आपको बताया विलेज में रहने वालों को अगर टीबी वगैरह के लिए ट्रीटमेंट करवाना होता है तो उन्हें शहरों में आने की ज़रूरत होती है, तो भारी मात्रा में पैसे के खर्च होता है। तो ऐसे स्थिति में इनकम प्रॉब्लम हो जाती है उनको, तो इनकम कम होने के कारण वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिला पाते हैं। मैल न्यूट्रिशन, बच्चों को अच्छे भोजन नहीं दिलवा पाते हैं, दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है, दूध खरीदना उनके लिए बहुत बड़ी लग्जरी जैसे लगता है। तो स्कूलों में भेजना, स्कूल आसपास स्कूल होते हैं लेकिन माता पिता काम पर जाते हैं तो छोटे बच्चों को देखने के लिए उन बच्चों को रोक लिया जाता है, या खुद ही बच्चे चाइल्ड लेबर बन के वहाँ पर काम करते हैं। वो भी काम करने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं और पैसा कमा के अपने घर का पालन पोषण करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी है तो अच्छी तरह पढ़े लिखे लोगों को किसी भी तरह की काम मिल जाती है, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इलिटरेट होते हैं। सो जो काम उनको मिलता है उसमें भी अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब काम स्किल ना जानने के कारण उनको किसी भी तरह के काम में एंगेज कर लिया जाता है और उनकी इनकम कम होती है। हेल्पलेसनेस की बात करें तो आप जानते हैं हमारे देश में इन सबसे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, दैट इज क्लीन वाटर। एंड सैनिटेशन। जहां पर पॉवर्टी होती है वहां पर क्लीन वाटर या सैनिटेशन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। वो जहाँ तहाँ से पानी लेके आते हैं और उनके बीमारियों का भी डर रहता है। सो हेल्पलेसनेस, असहाय। सो असहायता की स्थिति कैसे होती है? व्हेन दे आर unemployed or when they are illiterate, then wherever they go they are helpless to talk well, means decently, they can't deal with the problems। तो वो क्या होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन होगा, ऑफिसेस में होगा, बैंक में होगा या और किसी फील्ड में भी जब वो अपने बातों को लेके जाते हैं तो वो रख नहीं पाते हैं। तो ऐसे उनकी जो हेल्पलेसनेस है जिसके कारण वो पीछे रह जाते हैं, गरीबी उनको नहीं छोड़ती है। तो ये हमारे कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ आयाम हैं जो गरीबी को जन्म देती है। अब हम देखते हैं What is poverty? What is poverty? Poverty की सही परिभाषा तो नहीं दी जा सकती, इसे केवल हम देख सकते हैं, इसे हमारे परिवेश में हम इसको अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि द फैमिली, ए पर्सन, दोज हु cannot secure food, minimum level of food requirements, मतलब अपनी
कम से कम न्यूनतम जरूरी आवश्यकताओं को पूरी ना कर पाए, वो कौन होता है? वो होता है निर्धन या वो होता है पुअर। तो जरूरी आवश्यकताएं जैसे मैंने आपको बताया वो है हमारे खाद्य पदार्थ, हमारे लिए खाने की आवश्यकताओं की चीज़ें, उसके साथ साथ एक रहने के लिए छत, और हमें चाहिए अच्छे कपड़े पहनने के लिए कपड़े। तो ये 3 आवश्यकताएं पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? इनकम चाहिए। सो here the income is very important. If you have income then you can buy all this thing. But the social scientist ने यहाँ पर 2 indicators बताए हैं। इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। इस इंडिकेटर्स में मैंने जैसे आपको बताया, 1 इज इनकम एंड 1 इज कंजप्शन। इसके साथ साथ आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज, सैनिटेशन एंड मैल न्यूट्रिशन, हेल्थ फैसिलिटी, these all are included under this. Social exclusion is also one of the topic taken under this. Social exclusion. ये क्या है सोशल एक्सक्लूजन? सोशल एक्सक्लूजन मीन्स हमारे समाज में कुछ लोगों को अपेक्षित कर दिया जाता है, उन्हें दूर रखा जाता है। इफ दे आर पुअर, दे आर नॉट बॉट इन वेल ऑफ द फैमिली, विद द वेल ऑफ फैमिलीज या बेटर ऑफ फैमिलीज के साथ में उनको रहने की अनुमति नहीं होती है, उनको रहने की एक अलग जगह होती है, उनको उनके सोशल एंजॉयमेंट में उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरह से वो पीछे रह जाते हैं। तो पीछे रह जाने के लिए इसमें ज़्यादातर हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट है वो सोशली एक्सक्लूडेड है, वो डिनाइड है, वो हमारे समाज से उनको अलग। अंडमान में आप ये स्थिति नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है हमारे देश में समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनको कि, तो इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, उठाए गए हैं। आज बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन आया, लेकिन इसको भी हम देखते हैं कि समाज से जिन्हें अलग रखा जाता है उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनको समाज के सभी बेनिफिट्स को उठाने का लाइफ में अवसर नहीं मिलता है या उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो ऐसे में वो सोशली एक्सक्लूडेड है या डिनाइड फैमिलीज माने जाते हैं, तो वो भी पॉवर्टी को लीड करते हैं। अगला है वल्नरेबिलिटी। अब ये वल्नरेबल कौन है? वल्नरेबल वो हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जो विडोज हैं, या इस तरह से जो अनएम्प्लॉयड हैं। वो क्या होते हैं? एक तरह से वो पिछड़े होते हैं, उनके पास में कोई एसेट नहीं होता है, कोई भूमि नहीं होती है, या उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, उनके पास दूसरी चीज़ें नहीं होती है, तो वो एक तरह से पीछे होते ही हैं पहले से। और क्या होता है, ये पिछड़े लोग जब किसी तरह की परिस्थितियाँ आती है, ये परिस्थितियाँ जैसे भूकंप हो या सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है, या आप देखते हैं आज जो पेंडेमिक फैला हुआ है, ऐसे समय में उनकी जो स्थिति है वो पूरे और भी बुरी हो जाती है। तो इस स्थिति में इनकी सुरक्षा या ये पिछड़े रह जाते हैं, ये गरीबी महसूस करते हैं। सो दीज आर द सोशल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट we will take what is poverty. जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकम एंड कंजम्पशन, these are the 2 important methods. Other than that, I told you that the other indicators like job opportunities, health status, etc. are there, but we will go with the income method and consumption method. तो हम consumption method
की जब बात करते हैं तो दिस इज रिलेटेड विथ फूड. फूड, जो हम फूड लेते हैं ये हर देश के या समय या स्थान के हिसाब से इट डिफर्स. लाइक द अमाउंट ऑफ food taken, that every place according to places it differs and it provides more energy according to place. Like this income method, if we see somebody may have car, somebody may have any other electronic equipment, so these are the measurement of the social कैटेगरीज, सोशल स्टेटस. अगर हम अमेरिका की बात करें, यहाँ पर पॉवर्टी में अमेरिका इज, व्हेन ए पर्सन इज हैविंग अ कार, ही इज कंसिडर, इट इज नॉट कंसिडर एज ए rich man. It is but in India, if a person is having car, that means his luxury item. Car is considered as a luxurious thing. So this way, America and other countries of the world, we can take different examples. So as I told you, with the place, with the time, the poverty, income and consumption method differs. So consumption, energy is provided by food. So what amount of energy we take, that we measure in calorie. So this calorie is the unit of measuring energy. Next, in this way, it depends upon areas, that what amount of energy is healthier for them. If we were taking rural areas, the poverty is measured as, there you need 2400 calories of food. But if it is in urban area, the calorie intake is 2100. In rural area, you have seen 2400 calories of food, but in urban area 2100. Why this difference is there? This difference is because those who lives in urban area, rural area, they need more manual power. They works with the manual power, and here in urban areas, the people mechanical power is used, or they does not need much calories. So the rural area, the people get more, but when we come to income and calorie, the income is less needed for rural area. Why? Because they get at cheaper rates all the vegetables, and they cultivate rice, or they can get for that. But urban area, you need more income. So income and calorie, there is a opposite relationship. Next is income method. In income method, if person earns 1500 rupees per month for a family, that is considered in the village area, and that is in rural area, and 2700 in rupees in urban area. This calculation how comes? This comes through the price of the items and the major items they bought. How, where this, who measures this? This is by the SSO, Sample Survey Organization. Sample Survey Organization says that income and consumption method is the two important method which is used to measure poverty. If we go to International Monetary Fund, IMF says that if a person is getting less than $1
per day he is poor. So poverty is measured by different countries in different aspects, indicate through different indicators. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दो मेथड हैं, एक आय विधि है और एक उपभोग विधि है। आय विधि में व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है। तो अगर उसकी आय 328 रुपये विलेज में है तो 454 रुपीस अर्बन एरिया में है। तो अर्बन एरिया को अधिक पैसे चाहिए और रूरल एरिया को कम पैसे चाहिए, क्योंकि रूरल एरिया में चीपली सामान आसानी से मिल जाता है, कम दामों पे मिलता है। और शहरी इलाकों में आप जानते हैं सभी कुछ बहुत कॉस्टली होता है। इसके साथ साथ आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो रेंट भी बहुत अधिक होता है। इसके लिए ये दो अर्बन एरियाज और रूरल एरिया के लिए ये दो इनकम मेथड रखा गया है। इसके अनुसार अगर हम कैलकुलेट करते हैं 5 व्यक्ति के लिए तो ये दोनों में ये कैलकुलेशन आता है जो SSO हर 5 साल में पॉवर्टी को मेजर किया जाता है और हमारे SSO सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये काम किया जाता है। और मैंने बताया कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान है जो अगर गरीबी की ये करता है, मेजरमेंट करता है, तो वहाँ पर $1 से कम अगर उनका इनकम है एक व्यक्ति के लिए एक दिन, तब वो पुअर माना जाता है। तो आइए बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी 3 आवश्यकताएं, एक होता है भोजन, दूसरा होता है आवास, तीसरा होता है कपड़ा। तो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ ये आवश्यकताएं तो जरूरी है, इसके साथ साथ साफ पानी और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, इसका भी प्रबंध होना आवश्यक है। अगर व्यक्ति को ये नहीं मिल रहा है तो हम उनको गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। तो गरीबी रेखा मैंने आपको बताया कि 2 मेथड से इसको मेजर किया जाता है, एक इनकम मेथड और एक कंजम्पशन मेथड। तो कंजम्पशन मेथड में कैलोरी को महत्व दिया जाता है और कैलोरी के हिसाब से आपको मैंने बताया विलेज में रहने वाले के लिए 2400 या जिसको कि हम रूरल एरिया कहते हैं और सिटीज़ जिसको कि हम अर्बन एरिया कहते हैं वहाँ केवल 2100 का होता है। तो ये जो है ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप एक बार बुक उठा के पढ़ सकते हैं और छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, जैसे कि निर्धनता क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू. You can enjoy by doing this and study well. This will be helpful to reduce poverty. Next part will be continued next class.